چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ احتساب نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے تعلق خراب ہوئے۔ اسمبلیوں میں جا کر کیا کریں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ ہم آڈیو لیک سے اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ شفاف الیکشن سے ملک میں استحکام آئے گا، دہشت گردی بیچ کر ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ احتساب عدالت نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے تعلق خراب ہوئے۔ اسمبلیوں میں جا کر کیا کریں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ ہم آڈیو لیک سے اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ شفاف الیکشن سے ملک میں استحکام آئے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اہم خبر سے۔ تحریک انصاف عمران خان کا اس بارے میں کہنا ہے کہ جنرل باجوہ احتساب نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے تعلق خراب ہوئے۔ بلٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، پی ٹی آئی کی آزادی چوک سے یتیم چوک خانہ تک ریلی، ساؤنڈ سسٹم والی گاڑیوں کے سامنے رکشہ آنے پر پی ٹی آئی کارکنوں کی ڈرائیور کے ساتھ تلخ کلامی۔ کارکنوں نے رکشہ ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز لیں گے زاہد عابد سے۔ زاہد بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا تھا، جو کہ آزادی چوک سے لے کر یتیم خانہ چوک تک جس میں سفر مکمل کیا اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس کی قیادت کی، جبکہ دیگر قیادت بھی موجود تھی۔ اس دوران ٹریفک کا نظام شدید طور پر متاثر رہا اور ٹریفک وارڈن بھی خاص کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرتے نظر آئے، جس کی وجہ سے شہری آپس میں ہی الجھتے رہے۔ تو اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک چمچی رکشہ ڈرائیور اور ساؤنڈ سسٹم لے جانے والی گاڑی کے درمیان ایک سائڈ لگنے پر، جس کی وجہ سے یہ بات بڑھتے بڑھتے شدید تشدد کی حد تک جا پہنچی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا رکشہ ڈرائیور کو اور اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے سڑک سے ہٹا دیا اور ایک طرف لے جا کر بھی اسے پیٹتے رہے۔ اس قسم کی صورتحال متعدد کافی وقت تک جاری رہی، تاہم کوئی بھی مقامی قیادت یا اس وقت موجود قیادت اس بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کرتی نظر نہ آئی، بلکہ رکشہ ڈرائیور پر مسلسل تشدد ہوتا رہا اور تنہا رکشہ ڈرائیور کو کئی پی ٹی آئی کارکنان نے مل کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے بعد یہ اسی قسم کی صورتحال ٹریفک کی عمومی طور پر نظر آئی، جس میں ٹریفک وارڈن کی جانب سے خاص ڈائیورشن کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے عام شہریوں کو بھی خاصی مشکلات کا سامنا رہا اور عام شہری بھی ریلی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے زاہد، بہت شکریہ، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی داتا دربار پر حاضری، فاتح خانے کی اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے داتا دربار پر حاضری کی گئی گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے فاتح خانے کی اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ آپ کو مزید بھی بتائیں کہ داتا دربار کے باہر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اللہ کو بنایا کہ میرا شہر کراچی، جسے غریب سمجھ کر کوئی منہ نہیں لگا رہا، شہر کراچی جو روشنیوں کا شہر اور پاکستان کی معیشت کا ہب سمجھا جاتا تھا، اس کو نظر لگ گئی ہے۔ تو میں نے اپنے ملک پاکستان کے لیے اور اپنے صوبے اور اپنے شہر کراچی کے لیے یہاں خصوصی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں معاشی استحکام لے آئے اور صوبہ سندھ اور کراچی، جہاں گیس بجلی پانی نہیں ہے، وہ بھی میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے اسباب بنائے کہ شہر کراچی میں یہ تینوں چیزیں دستیاب ہوں۔ لاہور جہاں میں کھڑا ہوں، اس سے میرا پرانا اور دلی لگاؤ ہے، اور ابھی میں کہہ رہا تھا کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ کچھ نہیں دیکھا۔ تو لاہور میں موجود ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو بھی نظر سے بچائے اور ہم اسی طرح آگے کا سفر، جو نیا سال کا آج پہلا دن ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانا سال گزر گیا پریشانیوں میں، کووڈ میں اور سیلاب کی نظر ہوا، لیکن یہ آنے والا 2023 کا سال پورے پاکستان کے لیے، ہمارے تمام لوگوں کے لیے پرمسرت ہو، آمین، اور ہم اسی طرح ملک کو ترقی کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں۔ میں نے کیونکہ کہا کہ میں یہاں شکرانے کا دعا کرنے آیا تھا، کیونکہ جب ایم کیو ایم پاکستان میں شمولیت دوبارہ ہوئی تھی، تب بھی میں یہاں آیا تھا اور میں نے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور اللہ نے مجھے منصب پر 12 ربیع الاول والے دن نوٹیفیکیشن کیا
तो उसी सिलसिले की कड़ी में आज मैंने यहाँ के हाजिरी दी। वन मैन क्या हुआ अचानक, क्या हुआ अदनान एक आदमी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के अंदर जो है वो खिलाफ बढ़ता गया, आज भी खिलाफ की खबरें मौजूद हैं। अयाज सादिक जो है वो जा रहे हैं कराची में मामला को लेकर। आप सवाल तो करने दें भाई हमें, चले ये बता दें कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में अब क्या मामला है, बलदाती इंतखाबात होने वाले हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो क्या हैं और इस मसले को कैसे हल करेंगे आप? देखिए जी, बात सारी नीयतों की होती है और आज जिस जगह पर हम खड़े हैं मैं समझता हूँ कि सबको अपनी अपनी नीयत ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर आज भी हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी से चीज़ों को आगे लेकर नहीं जाएंगे तो मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है वो सब आपके सामने है। और अगर आज भी इत्तेफाक के बजाय नफाक को जन्म दिया गया तो मैं समझता हूँ कि ये सियासी जमातें अपना वजूद खो देंगी। ये एक आखिरी मौका मिला है एक दूसरे के साथ पाकिस्तान को बनाने का। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी ये कहा है और बारहा कहा है कि जो चीज़ें भी उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान के दोस्तों के साथ राइटिंग में तय की हैं, दस्तखत किए हैं, उसे पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान के दोस्त हैं वो फिर कोई फ़ैसला करने के लिए आज़ाद होंगे। देखिए, मैंने जहाँ बहुत सारी दुआएं की वहाँ ये दुआ भी की है कि हम सब जो इस मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करने का जो है। जिलानी पार्क में टी फेस्टिवल का आखिरी रोज़, साल के पहले दिन कसीर तादाद में शहरियों ने जिलानी पार्क का रुख किया। टी फेस्टिवल में आज कवाली नाइट होगी। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानेंगे। हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिलानी पार्क में। आज जो है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से टी फेस्टिवल का आखिरी और तीसरा रोज़ है। आज 2023 का भी पहला दिन है, जनवरी की पहली है और यहाँ पर जो आज इतवार के रोज़ अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि फैमिलीज़ के साथ ये फेस्टिवल एंजॉय करने आए हुए हैं। पंजाब फूड फेस्टिवल की जानिब से जो है यहाँ पर टी स्टॉल्स लगाए गए हैं और मुनफरिद जो है वो 70 से ज़ायद फूड स्टॉल्स लगाए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना यह है कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो बाकायदा हाइजीन की कंसल्टेशन कर रहे हैं कि आपको साफ़ और शफाफ चाय और पराठा कैसे मुयस्सर किया जा सकता है। उसके अलावा जो है यहाँ पर आज जो है वो कवाली नाइट भी होगी जिसमें जावेद संतू नामवर गुलकार हैं जो परफॉर्म करेंगे। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है। अच्छा मैम, बताइएगा कि इस इवेंट के बारे में आपका क्या कहना है? आज तो हमारा तो आज फर्स्ट डे इधर जब आए हैं, लेकिन ये कि बड़ा अच्छा एंटरटेनिंग है, डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे ऑल पर है, अच्छा का लगा हुआ है। ये कि वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट ऑफर्स भी दिए हुए हैं अपनी जो उनकी चीज़ें हैं उनके लिए। तो ये पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है। दूसरा ये है कि डिफरेंट स्टॉल्स तो हैं, नो डाउट, सिर्फ फूड में चाय नहीं है, बाकी चीज़ें भी हैं। मैं होप करती हूँ कि आइंदा नेक्स्ट ईयर में जब भी ये फूड अथॉरिटी वाले। ये बताइएगा कि जो फैमिली के साथ आप लोग आए हुए हैं, कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा, बिल्कुल फैमिली एटमॉस्फेयर है, किसी तरह का भी कोई थ्रेट नहीं है। हालांकि बहुत से लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, सब आए हुए हैं, लेकिन कोई भी इस तरह की फीलिंग नहीं है कि हम कहीं उस तरह की जगह पे आए हुए हैं। बड़ा अच्छा। जी, जैसे कि आपने जाना कि यहाँ पर फैमिली का कहना था कि यहाँ पर एक सेफ माहौल है और अच्छा माहौल है। यहाँ पर जो है ऐसे फेस्टिवल होप है कि अगले साल भी मुनक्किद किए जाएँ ताकि हम लोग फैमिलीज के साथ आके एंजॉय कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया हमजा आपका। फटाफट के बाद आपको बताएं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों में मोटरसाइकिल सवारों का पहला नंबर। साल 2022 पे 22,91,000 मोटरसाइकिल सवारों ने कानून तोड़ा, जबकि 3,43,000 से ज़ायद चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ने भी ट्रैफिक कवानीन को रोन डाला। इस हवाले से अपडेट लेंगे शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, साल 2022 में भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में मोटरसाइकिलिस्ट पहले नंबर पर हैं और पुलिस के मुताबिक 22,90,000 के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, जबकि 3,72,148 कार जीप ड्राइवर ने भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की हैं और 3,40,000 के करीब
से जायद जो चिंची रिक्शा ड्राइवर हैं उन्होंने भी कानून का एहतराम नहीं किया, जबकि 1,55,000 पब्लिक सर्विस कमर्शियल गाड़ियों को चालान टैक्स भी जारी किए गए और 2,04,000 से ज्यादा ट्रक, पिकअप और लोडर गाड़ियों को खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए गए हैं, जबकि 46,000 से ज्यादा चालान टिकट कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल चालान जारी किए गए हैं और 5,000 से ज्यादा लैंड क्रूजर को चालान टिकट जारी किए गए हैं। इसी तरह मिनी मजदा को 2,50,000 के करीब और चालान, जबकि ट्रक, ट्रॉलर और 40,000 चालान टिकट जारी किए गए हैं। एहतियाती तदबीर अपनाए बगैर सफर करने पर 17,000 ट्रैक्टर ट्रालियों को चालान जारी किए गए हैं, जबकि सीटीओ लाहौर का कहना है कि 1 करोड़ से ज्यादा शहरियों को वार्निंग देते हुए एजुकेट भी किया गया है। मामूली खिलाफ वर्जियों पर एजुकेट करते हुए वार्निंग दी जा रही है, जबकि शहरियों में ट्रैफिक शोर उजागर करने से हादसात में भी वाज़ह कमी आई है। जी शुक्रिया शाहजेब आपका। अभी आपको बताएं, वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। नौकरियां देने और घरों की तामीर के दावा करने वाला मुल्क में बेरोजगारी का सुनामी ले आया। वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल की अपने इंतखाबी हलका में आमद। लीगी कारकुनों ने वफाकी वजीर बनने पर राना मुबशर इकबाल का ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया और गुलदस्ते पेश किए। वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल ने ख़ियाबान अमीन में कारकुनों से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। नौकरियां देने और घरों की तामीर का दावा करने वाला मुल्क में बेरोजगारी का सुनामी ले आया। मुल्क को तबाही के दाने पे ले गए हैं पीटीआई वाले। इन्होंने मुल्क को यहाँ पे बेरोजगारी कर दी है। इन्होंने वादा किया था 50 लाख घरों का, एक घर नहीं बनाया। इन्होंने 50 करोड़ नौकरियों का दावा किया था, 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया था, एक नौकरी नहीं दी। इन्होंने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत का दावा किया था, वो नहीं पूरा किया। वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल ने कारकुनों से मुलाकात में इलाके के मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। इमरान खान की 4 साल कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं। वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। बोले कि जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौधरी ने इमरान खान के लिए बहुत कुछ किया। इमरान खान ने हर एक को डसा है। PDM की हुकूमत भी इमरान खान की नफरत की वजह से बनी। 4.25 साल जो हुक्मरानी रही नियाजी की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। इन्होंने सेलेक्ट कर लिया इमरान खान को, इलेक्ट तो करा नहीं सके। इमरान खान ने हुकूमत करनी शुरू की तो हर उस शख्स से बदला लिया जो उसके खिलाफ किसी ने मुंह से कोई लफ्ज निकाले। जहांगीर तरीन, जहाज, पैसा क्या नहीं किया इमरान खान के लिए। अलीम खान ने क्या कुछ नहीं किया, ओन चौधरी ने क्या कुछ नहीं किया। हर एक को इमरान खान ने डसा। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, डसा, कि जब आपके इलाके में या मोहल्ले में कोई लड़ाई होती है, कभी घर की खवातीन और बच्चियों को नहीं उसमें पर्चों में नामजद किया जाता। इन्होंने तो उस हद तक गए कि अलीम खान की, जहांगीर तरीन की घर की खवातीन को भी पर्चों में मुलव्वस किया, इसलिए कि उन्होंने उनके ऊपर एहसान किया था। अब तुम पंजाब की खैर मनाओ, इसलिए कि पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा चौधरी साहब। और चौधरी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब मोहतरम, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, इंसान की खसलत तब्दील नहीं होती। मैं आपको भी कहता हूं, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। आपने एहसान करके उनकी हुकूमत बनाई, अब इमरान खान के शर से डरे। दिल से मैं कहता हूं कि आप भी खुश नहीं होंगे उससे। बढ़ती हुई महंगाई में कंस्ट्रक्शन मटीरियल भी मजीद महंगा हो गया। चंद माह के दौरान तामीराती सामान की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सीमेंट की बोरी 1100 रुपये तक फरोख्त होने लगी, जबकि सरिया 270 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा। सफ़ेद पोश तबके के लिए घर की तामीर मुश्किल तर हो गई है। कंस्ट्रक्शन मटीरियल मजीद महंगा हो गया है।
चंद माह के दौरान तामीराती सामान की कीमतों में होश रुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सीमेंट की बोरी 1050 से 1100 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। 1000 ईंट 16,000 रुपए में मिल रही है, जबकि सरिया 270 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। मैक्लोर रोड पर वाकई कंस्ट्रक्शन मटेरियल की दुकानों पर आए शहरी कीमतें सुनकर परेशान। कहते हैं इतनी महंगाई में तो घर बनाने का सोच भी नहीं सकते। सीमेंट, सरिया और ईंटों की कीमतें पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। इतनी महंगाई हो गई कि हद से ज़्यादा। गरीब आदमी तो अपना मकान नहीं बना सकता, गरीब आदमी कोई हांडी नहीं पका सकता, गरीब आदमी की जब बहुत मुश्किल हो गई। महंगाई बहुत हो गई। 1050 रुपये की बोरी सीमेंट की और 16,000 रुपये की 1000 ईंट है। ये देखें कि गरीब आदमी कैसे अपना मकान बना सकता है, बच्चों की रिज़्क पूरा करे या अपना घर का मकान बनाए, क्या करे आदमी। शहरियों का मजीद कहना था कि महंगाई के इस दौर में घर की तामीर मुश्किल तरीन हो गई है, जबकि किराए के मकानों में रहना भी मुश्किल हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। और मौसम सरमा में सस्ते गर्म मलबूसात की खरीदारी। छुट्टी के रोज़ भी शहरियों ने बड़ी तादाद में लंडा बाजार का रुख किया। अवाम का कहना है कि महंगाई के असरात लंडा बाजार पर भी नुमायां हैं। लंडा भी बहुत महंगा हो गया है। लंडा बाजार में भी महंगाई का बाजार गरम मलबूसात की खरीदारी के लिए शहरियों का लंडा बाजार में रश। गरीब की लिबर्टी मार्केट में भी महंगाई ने डेरे डाल लिए। जैकेट, कोट, जर्सियां, जराबें और दस्ताने लंडा बाजार में दुकानदारों के रेट मन माने। गुज़िश्ता साल की निस्बत अशिया की कीमतें दुगनी हो गई हैं। लंडा बाजार में जर्सी 700 से 1000 रुपए तक मिल रही है, जबकि मयारी कोट 3 से 4,000 रुपए में बेचा जा रहा है। गरम जराबें 100 से 150 रुपए तक फरोख्त हो रही हैं। दस्ताने 300 से 400 रुपए तक दस्तयाब हैं। बोर्ड वाला चौक, हाजी कैंप, लंडा बाजार में आए शहरी ने महंगाई का शिकवा किया। कहते हैं सस्ते बाजार बस नाम के सस्ते रह गए हैं। लंडा बाजार में हर चीज की कीमत दुगनी हो गई है। सफेद पोश तबका जाए तो किधर जाए। हाजी कैंप लंडा बाजार में रश के बायस शहरी को पार्किंग के मसाइल का भी सामना है और ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर होने लगी है। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। साल 2022 गुजर गया मगर महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। सर्दी बढ़ते ही बिजली के हीटर्स और चूल्हों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। दुकानदारों ने इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतों को डॉलर और पेट्रोल के निर्खों से ही जोड़ दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, गैस की बंदिश और कम प्रेशर के बायस इलेक्ट्रॉनिक अशिया की मांग भी बढ़ गई। शहरी बिजली के हीटर्स और चूल्हों की खरीदारी में लग गए। मांग बढ़ते ही बिजली के हीटर्स और चूल्हों के दाम में भी इजाफा हो गया। 2 ट्यूब वाला हीटर 1000 रुपए, जबकि छोटे साइज का फैन हीटर 3000 से 3500 रुपए में मिल रहा है। बड़े साइज के फैन हीटर की कीमत 6000 रुपए तक जा पहुंची। दरमियाने साइज का चूल्हा 1500 से 1800 रुपए में दस्तयाब है, जबकि बड़े साइज के चूल्हे की कीमत 2500 रुपए तक है। शहरियों का कहना है कि हर चीज पहुंच से बाहर हो चुकी है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने पर भी तवज्जो दे। चूल्हा लेना है अपने घर के लिए, इसके अलावा मैंने हीटर भी लेने हैं, जैसे सर्दी है, लेकिन जो प्राइसेस है ना वो बहुत बढ़ चुकी हैं। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मार्केट विजिट करूं या यहाँ से सीधा अपने घर चला जाऊं। गीज़र लेने आई थी तो इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा जो आसमान को छू रही हैं। तो सुबह सुबह बच्चों ने स्कूल के लिए जाना होता है, तो स्कूल में जाने के लिए बच्चों की बड़ी मुश्किल होती है। महंगाई का ऐसा हो गया है कि अगर कोई चीज़ 10,000 रुपये की थी ना पिछले साल जो हमने लिया, तो अब अगर हम मार्केट में आए तो वही चीज़ 22-23 रुपये की हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि डॉलर और पेट्रोल की कीमत में इजाफे से इलेक्ट्रॉनिक अशिया महंगी हुई। डॉलर की प्राइसेस बढ़ रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ रही हैं। ये चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो ये सारे का सारा असर उन प्रोडक्ट पे पड़ता है जो बाहर से मटेरियल आने के बाद यहाँ पे असेंबलिंग हो रही है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी और मौसर इकदाम उठाए जाएं। और सिनफ़े नाजुक से सिनफ़े आहन तक का सफ़र मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन हरगिज़ नहीं। बस हिम्मत और हौसला होना चाहिए। इस बात को पूरी तरह साबित किया है। रेलवे पुलिस स्टेशन में तैनात होने वाली पहली खातून SHO ने ख़वातीन के लिए खुद इन्हिसारी कितनी अहम है, जानते हैं सामिया सईद की इस रिपोर्ट में। इसमें कोई शक नहीं कि ख़वातीन को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। ख़वातीन खुद को हर तरह के हालात के मुताबिक ढालने की भरपूर सलाहियत रखती है। इस बात को पूरी तरह से साबित कर रही हैं नौशीन कंवल, जिन्हें रेलवे पुलिस स्टेशन मुगलपुरा में पहली खातून SHO के तौर पर तैनात किया गया है। फीमेल पुलिस ऑफिसर फीमेल के केसेस जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं। हैरेसमेंट के, रेप के, एब्डक्शन के इस तरह के केसेस फ़ीमेल ख़वातीन जो है वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से, और एक फ़ीमेल एक्यूज़ड है या फ़ीमेल विक्टिम है तो वो फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर को ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा वाज़ेह तरीके से ऐसी बातें नहीं बता सकती है जो वो किसी मेल ऑफिसर को ना बताती हो।
1982 में कायम होने वाले इस पुलिस स्टेशन में तैनात होने वाली नौशीन कंवल के लिए अपने फराइज की अंजाम दही बहरहाल आसान नहीं है। खालिसतन मर्दाना माहौल में पेशा वराना सलाहियत की अंजाम दही के दौरान इन्हें बेशुमार मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन कहते हैं ना कि हौसला जवां हो तो फिर कोई रुकावट आड़े नहीं आ सकती। ख़वातीन अपनी ज़िंदगी किसी पर इन्हिसार करके ना गुजारें, बल्कि अपने बलबूते पर खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर अपने जो रोज़गार हैं वो हासिल करें। इस खातून ऑफिसर की तैनाती दीगर खवातीन के लिए एक पैगाम भी है कि खवातीन के लिए खुद इन्हिसारी कितनी अहम है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। नई उम्मीदों और अज़्म के साथ नए साल का आगाज़। लाहौर में भी नए साल का जश्न भरपूर अंदाज से मनाया गया। रात 12 बजते ही शानदार आतिशबाजी के साथ साल 2023 को खुशामदीद कहा गया। नई उम्मीदों और अज़्म के साथ नए साल 2023 का आगाज़। लाहौर में भी नए साल का जश्न भरपूर तरीके से मनाया गया। रात 12 बजते ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शानदार आतिशबाजी के साथ साल 2023 को वेलकम कहा गया। साल नौ की आमद पर रंगारंग तकारीब सजाई गई। बहरिया टाउन लाहौर में जश्न की सबसे बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां शानदार आतिशबाजी की गई। आसमान रंगनूर की रोशनी से जगमगा उठा। लिबर्टी चौक में भी नए साल को शानदार आतिशबाजी के मुजाहरे से खुशामदीद कहा गया। 2023 को वेलकम कहने के लिए अवाम मॉल रोड पर निकल आए और अपने अपने अंदाज में नए साल का जश्न मनाया। नए साल पर मंचलों ने बाइक्स पर रैलियां भी निकाली। वन व्हीलिंग और साइलेंसर निकालकर मोटर बाइक्स चलाने पर पुलिस ने मुतादिद गिरफ्तारियां भी की। न्यू ईयर नाइट पर मंचलों को हुल्लड़बाजी करना महंगी पड़ गई। बेसियों मोटरसाइकिल सवार हुल्लड़बाजी के दौरान जख्मी हो गए। मियों और जिनाह अस्पताल के इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा जख्मी मरीज रिपोर्ट हुए। न्यू ईयर नाइट पर मंचलों को हुल्लड़बाजी महंगी पड़ गई। गुज़श्ता रात बेसियों मोटरसाइकिल सवार हुल्लड़बाजी के दौरान गिरकर जख्मी हुए। मियों अस्पताल के इमरजेंसी में 23 जबकि जिनाह अस्पताल में 21 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर जनरल अस्पताल में 19 और सर्विसेज अस्पताल में 15 मरीज सामने आए, जबकि अस्पतालों की इंतजामिया के मुताबिक ये कहा गया कि तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की फराहम की गई, जबकि फ्रैक्चर के मरीजों के ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। और मजहबी रवादारी को फ़रोग देने के लिए कैथेड्रल चर्च में नए साल की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मजहबी रवादारी हम सब की जिम्मेदारी। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में नए साल की आमद पर खसूसी तकरीब सजाई गई। मसीही बरादरी ने भी नया साल खूब जोशो खरोश से मनाया। कैथेड्रल चर्च में मुस्लिम और मसीही रहनुमाओं की जानिब से खसूसी दुआया तकरीब हुई। बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ, मौलाना आसिम मखदूम और दीगर रहनुमाओं ने नए साल का केक काटा। मुस्लिम और मसीही रहनुमाओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर नए साल की मुबारकबाद दी और दुआ की कि नया साल मुल्क में सियासी व इक्तसादी सूरत हाल के लिए बेहतर साबित हो। आज नया साल है और आपने देखा कि यहाँ पर तमाम मज़हब और मसलक के लोग भी हैं और हम सब ने मिलकर दुआएं की हैं और हमारी दुआ है कि 2023 का साल हर दिन हम सब के लिए, मुल्क के लिए तरक्की, कामयाबी, खुशहाली का साल हो और तमाम मज़ाहिब मसलक के लोग भी आपस में और ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से रहें। अगर तमाम मज़ाहिब के जो मानने वाले हैं उन्होंने ये पैगाम दिया है कि जिस जज्बे से हमने पिछले साल अमन और रवादारी का काम किया है, उसी जज्बे से बल्कि उससे नए जज्बे और नए वलवले के साथ हम 2023 में नए आने वाले साल में अमन और रवादारी और मोहब्बत का पैगाम देंगे। मसीही बरादरी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नया साल सबके लिए खुशियों से भरपूर साल हो। हमारी उम्मीद है कि खुदा ये जो साल है, नया साल है, इसमें खुशहालियाँ आएंगी और उम्मीद है कि सब बहुत ही खुशहाल रहेंगे। नया साल हर एक के लिए खुशियाँ लाए और जो भी कमियाँ परेशानियाँ हमारी लाइफ में जो मुश्किलात है, खुदावंद उनको दूर करे। तकरीब में शरीक बच्चों में नए साल का केक तकसीम किया गया। और साल 2022 में 3 हुकूमतें बदली, मगर एजुकेशन सेक्टर के हालात अभी ना बदले। स्कूलों में 1 लाख असातिज़ा की सीटें खाली हैं। नई जामियात का ऐलान भी ऐलानात तक ही महदूद रहा। तुलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का मंसूबा भी तर्क कर दिया गया।
साल 2022 एजुकेशन सेक्टर पर भारी रहा। स्कूल एजुकेशन में मॉडल स्कूलों का मंसूबा मुकम्मल न हुआ। लाहौर के स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी न लगाए जा सके। लाहौर के स्कूलों में इजाफी क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी भी न मिली। खतरनाक इमारतों की तामीर नो का मंसूबा भी इल्तवा का शिकार रहा। लाहौर में पहले ट्रांसजेंडर स्कूल का मंसूबा 6 माह के इल्तवा के बाद मुकम्मल हुआ। महकमा स्कूल एजुकेशन में अफसरान की तब्दीली की वजह से पॉलिसीज पर अमल दरामद न हो सका। असातिज़ा की तरक्कियां ताहाल इल्तवा का शिकार हैं। यकसा निसाब का दूसरा फेज भी हुकूमतों की तब्दीली की नजर हुआ। सूबे के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की 1 लाख सीटें खाली पड़ी हैं, जिन पर 16,000 असातिज़ा की भर्ती का ऐलान हुआ, जो ताहाल ऐलान तक ही महदूद है। नई जामियात का ऐलान हुआ, मगर ताहाल यूनिवर्सिटीज कायम न हो सकी। रवां साल भी जामियात और तालीमी इदारों को मुस्तकिल सरबराह न मिल सके। पंजाब यूनिवर्सिटी समेत सूबे की 4 जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं। सूबे के 6 तालीमी बोर्ड में भी मुस्तकिल सरबराहान नहीं है। सूबे के 100 से ज्यादा कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती भी इल्तवा का शिकार रही। कॉलेजेस के असातिज़ा ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए 30 से ज्यादा दिन तक धरना दिया, मगर ताहाल उनके मुतालबात पूरे न हुए। साल 2022 में सेशन अदालत में मुख्तलिफ नौइयत की 99,000 से ज्यादा दरख्वास्तें और मुकदमात दायर हुए। पुलिस 34,166 मुकदमात के मुल्जिमान को अंदराज मुकदमा के बाद भी गिरफ्तार न कर सकी। सेशन अदालत में दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी की 34,166 दरख्वास्तें दायर हुई। दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी की 9,055 दरख्वास्तें दायर की गयीं। 740 साइलीन ने दरख्वास्त जमानतें मनसूख करने के लिए अदालतों से रुजू किया। पसंद की शादी के लिए 2,856 जोड़ों ने अदालत से रुजू किया। अंदराज मुकदमा की दरख्वास्तों के लिए 17,558 साइलीन अदालत पहुँचे। अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए 3,990 साइलीन दाद रसी के लिए आए। हरासा करने के खिलाफ 10,618 साइलीन ने अदालत से रुजू किया। मुकदमात की जल्द समाअत और फैसले के लिए 2,880 दरख्वास्तें दायर हुई। जायदाद पर गैर कानूनी कब्जे के लिए 295 मुकदमात दायर हुए। सिविल मुकदमात के फैसलों पर अमल दरामद के लिए 1,090 साइलीन, जबकि सिविल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ 4,550 साइलीन ने अदालत से रुजू किया। 1,478 साइलीन ने फैमिली केसेस के खिलाफ अपीलें दायर की। 492 साइलीन ने किराएदारी अपीलों के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की। 195 साइलीन ने गार्डियन फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की। 2,345 साइलीन ने सिविल अदालतों के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की। जायदाद की हवालगी और फैसलों के खिलाफ 696 दरख्वास्तें दायर की गयीं। रकूम की रिकवरी के लिए 401 दरख्वास्तें अदालत पहुंची। माल मुकदमा की सुपरदारी के लिए 158 साइलीन ने अदालत रुजू किया। साल 2022 में ज़िली अदालतों में 91 एडिशनल सेशन जजेस और कचहरियों के 66 जुडिशल मजिस्ट्रेट्स ने साइलीन को इंसाफ फराहम किया। कैमरा टीम के साथ नोमान नूर, लाहौर न्यूज़। फिलहाल इतना ही।